वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस, जहां हम आज करेंगे टर्म 1 का आपका क्लास 12 का सिलेबस ब्रीफ रिवीजन। ठीक है, आपके अभी 1 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है, तो उसके लिए हम ब्रीफ रिवीजन करेंगे क्लास 12 का विथ योर एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं विथ योर चैप्टर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? R is nothing, a relation R is nothing, but if AB belongs to R, then we say, if we write AB belongs to R, it means we say A is related to B, or we write it as A is related to B in symbolic. And if AB does not belongs to R, then A is not related to B. And R relation is nothing but your Cartesian product of two sets. If A is a relation, then we can write it as R is a subset of A cross A, means R is a subset of Cartesian product of A. Okay, then domain, range and codomain. Domain क्या होता है आपका? First set elements of set A is known as your domain in terms of relation. So domain is nothing but A such that AB belongs to R. And range, what is range? The second set elements means elements of set B is known as your range. That is range equals to B such that AB belongs to R. Codomain, what is codomain? The whole set B is known as your codomain, means set B is called your codomain. Then next, equivalence relation. Then come to the important topic in your class 12th, that is your equivalence relation. If a relation R is reflexive as well as symmetric and transitive, then it is known as your equivalence relation. Now we study what is your reflexive, what is your transitive and symmetric relation. So start करते हैं. Now, what is your reflexive relation? A relation R defined on set A is said to be reflexive if for any element x belongs to R, for every x belongs to A, जो कि आपका A से belong करेगा, that is x is related to x for every x belongs to A. Clear? इसको clear करेंगे next questions की help से. Next is your symmetric relation. A relation R defined on set A is said to be symmetric if xy belongs to R implies yx belongs to R for every xy belongs to A. It means we can write it as x related to y simply implies y related to x for every xy belongs to A. This is your symmetric relation. Then next is your transitive relation. Then next is your transitive relation. A relation R defined on set A is said to be your transitive if xy belongs to R and yz belongs to R implies xz belongs to R. That is x related to y and y related to y related to z implies x related to z for every xyz belongs to A. And then a relation R is equivalence if and only if it is reflexive, symmetric and transitive. और ये जो लिखी हमने ये इसकी conditions है for proving reflexive, symmetric and your transitive relation. If you prove a relation is your reflexive, symmetric and transitive all, then it is an equivalence relation. Next, come to your equivalence classes. Consider an arbitrary equivalence relation R on an arbitrary set X. If we consider R is any equivalence relation on your set X, then R divides X into mutually disjoint subsets AI. तो R कैसे डिवाइड करेगा आपका X को? म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में. एंड डिसजॉइंट सबसेट्स क्या होते हैं आपके? फॉर विच इंटरसेक्शन इज योर 5, मीन्स उनके इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, देन इट इज नोन एज योर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट. देन हम उसको क्या बोलेंगे? इफ R डिवाइड्स X इंटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स AI, देन इट इज कॉल्ड पार्टीशंस और सब डिविजन्स ऑफ X. ओके, और क्या बोलेंगे हम उसको? इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ R. क्या बोल देंगे उसको? इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ R इफ सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस, जो अभी हम नोट डाउन करवाएंगे आपको. क्लियर? सो 3 कंडीशंस है. फर्स्ट वन इज फॉर ईच I all elements of AI are related to each other. That is AI union AJ equals to X if I not equals to J. मीन्स उसका हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा. किसका? ए का. ठीक है, रिलेशन आर का कोई सेट ए है, उसको हमने डिवाइड किया इनटू सब डिविजन्स और योर पार्टीशंस. देन फॉलोइंग कंडीशंस अगर अप्लाई होते हैं, देन इट इज नोन एज योर इक्विवेलेंस क्लास. फॉर ईच आई
फर्स्ट है जिसमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ एआई आर रिलेटेड टू ईच अदर, हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा। देन सेकंड, नो एलिमेंट ऑफ एआई, एआई का कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं होगा एजे से, दैट इज दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है। दैट इज एआई इंटरसेक्शन एजे इक्वल्स टू 5 फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे। एंड थर्ड वन, AI union AJ equals to X but AI intersection AJ equals to 5। तो आपकी ये कंडीशंस अप्लाई होंगी, देन इट इज नोन एज योर इक्विवेलेंस क्लास, ओके, ऑफ रिलेशन R। नेक्स्ट अब करेंगे इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बिफोर वी रीच टू फंक्शंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन योर रिलेशंस दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही करेंगे इसमें, जैसे कि आपका एग्जाम का पैटर्न है फर्स्ट टर्म के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर द रिलेशन आर इन द सेट, ये सेट गिवन है आपको, गिवन बाय रिलेशन आर आपको डिफाइंड है। देन फर्स्ट ऑप्शन इज योर रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको चेक करना है वेदर आर इज योर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट हम कंडीशंस चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में। अब इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आपको वहां पे क्विक देखना है कि आपका रिलेशन आर वेदर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने कंडीशन लिखी थी एक्स रिलेटेड टू एक्स, ऐसा है। इट मीन्स आपका जो एलिमेंट है एक्स एक्स वो किससे बिलोंग करेगा, आर से, क्लियर। फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग्स टू योर आर, तो आपका 1 2 3 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ठीक है, आर से। द रिलेशन आर इन द सेट, और रिलेशन आर कैसे गिवन है चेक करिए। अब 1 1 है इसके अंदर, यस। 2 2 बिलोंग कर रहा है, यस। 3 3 बिलोंग कर रहा है, यस। सो एज 1 1, ये सब आपको नोट डाउन नहीं करना है ना, वहां पे करके दिखाना है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये सॉल्यूशन कर रही हूँ, नहीं तो आपको डायरेक्ट ही चेक कर लेना है। सो 1 1 2 2 और ये 3 3 बिलोंग कर रहा है आपके रिलेशन आर से। इट मीन्स ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। ये क्या इंप्लाई करता है आपका कि आपका रिलेशन आर क्या है, रिफ्लेक्सिव। देन चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए फर्स्ट हम सिमेट्रिक देखेंगे, ये आपने अप्लाई किया रिफ्लेक्सिव के लिए। नेक्स्ट हम चेक करेंगे वेदर इट इज सिमेट्रिक ऑल्सो। सो सिमेट्रिक के लिए मैंने लिखा था इफ एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंगिंग्स टू आर, क्लियर। इट मीन्स 1 1 2 2 ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए हो गए। यहाँ पे देखो 1 2 है, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, बट 2 1 है रिलेशन आर में, नो, बट 2 1 does not belongings to R, it means not symmetric, ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। ये रिलेशन आर क्या होगा आपका, सिमेट्रिक नहीं होगा। देन थर्ड कंडीशन लगाते हैं फॉर ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको लिखवाया था ठीक है, ये फर्स्ट हमने चेक किया रिफ्लेक्सिव, देन सेकंड चेक किया फॉर सिमेट्रिक, अब थर्ड हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, क्योंकि इसके एक ऑप्शन में आपको इक्विवेलेंस भी दिया हुआ है, इसलिए हमें तीनों ही रिलेशन चेक करने होंगे। फर्स्ट अपने ऑप्शंस को अच्छे से रीड कीजिए, उसमें पूछा क्या है। अगर इसमें ये इक्विवेलेंस नहीं दिया होता, खाली सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दिया होता तो हमारा आंसर आ चुका होता, लेकिन इसने बोला इक्विवेलेंस, तो हमें ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा फॉर ट्रांजिटिव। अब फॉर ट्रांजिटिव हम देखेंगे इफ ये दिया हुआ है 1 2 बिलोंगिंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंगिंग्स टू आर, ऐसे दिया हुआ है। इट मीन्स क्या होना चाहिए था आपका 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए था आर से। 1 3 है इसमें, नहीं है, इट मीन्स ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। अब ये सिमेट्रिक नहीं है, तो यहीं से हमारा ऑप्शन चेक हो गया था कि इक्विवेलेंस नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट जब आपने यहाँ चेक किया जिसमें रिफ्लेक्सिव गिवन है, क्योंकि आपका रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव आ रहा है बट नॉट सिमेट्रिक, अगर आप थर्ड पार्ट भी नहीं करते तो इसको कट डाउन कर सकते थे, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडीशन यहीं पे आपको चेक होगी थी कि सिमेट्रिक नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। इक्विवेलेंस के लिए आपको ये तीनों ही रिलेशन शो करने हैं कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। कोई एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं करता है देन इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फोर्थ ऑप्शन कट डाउन। देन थर्ड देखिए सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है ही नहीं, तो ये भी कट डाउन। जहां सिमेट्रिक दिया हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट।
ये भी कैंसिल आउट, तो बचा क्या, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। सो फर्स्ट ए ऑप्शन इज योर करेक्ट। और आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे, ये एक सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट इसलिए करवाया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो डायरेक्ट चेक करोगे तो यहीं से जो 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 बिलोंग कर रहा है फॉर दिस 3 एलिमेंट्स, तीनों के तीनों एलिमेंट्स दिए हुए हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, सो इट इज योर रिफ्लेक्सिव। सेकेंड थिंग, सिमेट्रिक के लिए 1 2 दिया हुआ है बट 2 1 इज नॉट गिवन इन दिस रिलेशन, सो यहीं से चेक हो गया था आर से ही कि आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड सिचुएशन, 1 2 गिवन है, 2 3 गिवन है बट 1 3 इज नॉट गिवन इन द आर, सो आपको आर से ही यहीं से चेक कर देना है, ये सब राइट डाउन नहीं करना है। इट मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, करेक्ट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next, question number 2. Let T be the set of all triangles in a plane with R be the relation in T given by. Relation R क्या defined है on the set of all triangles? T1, T2, कोई T1, T2 triangle है, T1 is congruent to T2 आपको given है. Then R is reflexive only, हमें चेक करना है, not transitive, and equivalence relation और symmetric only. अब इक्विवेलेंस आ गया तो हमें तीनों ही रिलेशन चेक करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट आर योर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। फॉर कॉन्ग्रुएंसी आपको पता है आपका फिगर क्या होंगे, दोनों ही ट्रायंगल्स क्या होंगे, क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल्स आपके बिल्कुल सेम होंगे शेप एंड साइज में, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के अलग अलग कंडीशंस लगा के हम किन्हीं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आपने रीड किया हुआ है आपका 10th में चैप्टर। तो अगर कोई ट्रायंगल T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, फर्स्ट से ही ये क्लियर है, तो T2 कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के, इट मीन्स T1 T2 बिलोंगिंग्स टू R, दैट इम्प्लाइज योर T2 T1 बिलोंगिंग्स टू R। तो रिलेशन इज योर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा ये। दूसरा, रिफ्लेक्सिव के लिए एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। इसको आप विदाउट राइटिंग और विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, बिना पेन उठाए आप सोल्व कर सकते हो यहीं से, बिकॉज एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, तो रिफ्लेक्सिव भी होगा। थर्ड केस है आपका, अगर कोई ट्रायंगल T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लगा के T1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T3 के भी। सो ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, वो आपका ट्रांजिटिव भी होगा, मीन्स आपका रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, एंड आपका ट्रांजिटिव भी आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आप यहाँ पे डायरेक्ट टिक कर दोगे अपने एमसीक्यू में ऑप्शन सी को, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पता होना चाहिए कि तीनों ही रिलेशन उसके अंदर सेटिस्फाई करने चाहिए। फिर आपको तीनों की कंडीशंस पता होनी चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ओके। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। सेट ए के लिए रिलेशन आर क्या डिफाइंड है, एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। जो भी आप ऑर्डर्ड पेयर लेंगे उसमें जो y एलिमेंट होगा वो डिविजिबल होना चाहिए x से। तो अब आपको चेक करना है वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव। आपके अलग अलग ऑप्शंस गिवन है, तो चेक करते जाइए एक के बाद एक। अब ईच एलिमेंट डिवाइड बाय इटसेल्फ। अब आप रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेंगे, यहाँ पे 1 1, तो 1 डिवाइड बाय 1 इटसेल्फ 2 2। सो एवरी यहाँ पे जितने नंबर है, ठीक है, एक्सेप्ट योर 0, यहाँ पे सभी नंबर डिविजिबल होंगे बाय इटसेल्फ। तो ये रिलेशन क्या होगा आपका, ठीक है। आप विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, बिना पेन उठाए डायरेक्ट चेक कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव तो होगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्सिव की। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव जहां जहां है उसको तो टिक कर लीजिए। अब इस ऑप्शन में से, इसमें से या सी में से, नन ऑफ द वो तो होगा नहीं, इसको कट कर दीजिए। फोर्थ ऑप्शन को पहले नेग्लेक्ट करते जाइए कि क्या क्या कंडीशन हमारी नहीं आ रही है, तो जो रिमेनिंग ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। सेकेंड चेक करते हैं आप सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए कोई भी पेयर लीजिए आप, जैसे मैंने लिया 2 4। अब y इज डिविजिबल बाय x, यहाँ पे y क्या है 4, 4 डिविजिबल है बाय 2 से, यस है, ठीक है। बट ये क्या इंप्लाई करता है फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम कंडीशन क्या चेक करते हैं कि आपका अगर 2 4 डिविजिबल है तो इट मीन्स 4 2 भी डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कंडीशन क्या गिवन है, y इज डिविजिबल बाय x। क्या 2 डिविजिबल है बाय 4 से, नो। तो ये कंडीशन क्या आ रही है 1 बाय 2, ये तो आपका और क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया ना। सो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये आपके सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है हाफ। अगर ये सेट ए से बिलोंग करता तो आपका हो जाता सिमेट्रिक, बट ये सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा, इट मीन्स ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं होगा तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन आपके कट डाउन हो रहे हैं। सेकंड में सिमेट्रिक दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं आपका आंसर।
थर्ड में इक्विवेलेंस दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं से आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आपको चेक ही नहीं करना पड़ेगा फॉर ट्रांजिटिव, यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपको चेक करना आता है इस तरीके से, अगर आप एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे कि कौन कौन से कंडीशंस आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहे, फर्स्ट उन्हीं को कट डाउन कर दीजिए, तो पूरा आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका टाइम भी सेव होगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा माइंड लगाइएगा एग्जाम में कि आपने चेक कर लिया कि आपका सिमेट्रिक नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये इक्विवेलेंस तो कट हो गया। ठीक है, और फर्स्ट हमने देख लिया था रिफ्लेक्सिव आ रहा है, तो नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन भी कट डाउन हो गया। थर्ड आपने देख लिया कि सिमेट्रिक इसमें दिया हुआ है बी ऑप्शन में, तो ये भी कट डाउन हो गया क्योंकि सिमेट्रिक की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, अब बचा ए ऑप्शन, ये तो आंसर होगा ही आपका। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट सिमेट्रिक, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर, तो इस तरीके से सोल्व करने हैं आपको एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लेट ए and a relation A cross A means Cartesian product of A is defined as R equals to AB such that AB belongs to A and mod of A minus B is divisible by 3. Clear? आपको कोई सेट A गिवन है, उस पे आपका रिलेशन R डिफाइंड है, ये रिलेशन R गिवन है आपको, देन फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। अब मैंने इक्विवेलेंस क्लास की आपको कंडीशंस लिखवाई थी। ठीक है, अगर हम कोई सेट ले ले A और उसके पार्टीशंस ले ले X ऑन रिलेशन R, देन इट इज नोन एज योर इक्विवेलेंस क्लास इफ ऑल AI फॉर ईच I, सारे जितने भी I जो भी एलिमेंट्स होंगे A के, वो A से बिलोंग करेंगे। मीन्स जो आपका यूनियन होगा AI, ठीक है, जो यूनियन के एलिमेंट्स होंगे वो बिलोंग करेंगे रिलेशन R से, बट म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे वो सबसेट्स। म्यूचुअली डिसजॉइंट मीन्स फॉर एनी J वो एलिमेंट्स उससे बिलोंग नहीं करेंगे A से। AI इंटरसेक्शन A से क्या आएगा आपका 5। तो अब इससे क्लियर करेंगे आपका इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट इस क्वेश्चन से। तो यहाँ आपको हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। और रिमेंबर ये आपका कहाँ अप्लाई होगा, फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। जब आपका इक्विवेलेंस रिलेशन R डिफाइंड होगा, उसी के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं आपका इक्विवेलेंस क्लास। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, अब ये किसकी इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है हमसे, 2 की। और A आपको कोई सेट डिफाइन है इस तरीके से, X बिलोंगिंग्स टू इंटीजर सच दैट 0 इज लेस देन योर X लेस देन इक्वल्स टू X लेस देन इक्वल्स टू 10। और कोई रिलेशन R डिफाइंड है A B सच दैट A B बिलोंगिंग्स टू A एंड मोड ऑफ A माइनस B इज डिविजिबल बाय 3। जो मोड में वैल्यू आएंगी इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स का डिफरेंस, वो किससे डिविजिबल होगा, 3 से। अब हमें यहाँ किसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, 2 की, क्योंकि इंटीजर्स वैल्यू आपके कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं, 0 to 10। तो उसमें हमें 2 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करनी है यूजिंग दिस रिलेशन R। तो कैसे निकालेंगे, फॉर इक्विवेलेंस क्लास, फॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 R क्या हो जाएगा आपका, R हो जाएगा यहाँ पे ये ऐसे लिखो इसको, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 पूछ रहा है ना, 2A 2 माइनस A इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, हमने इस इक्विवेलेंस क्लास के लिए जो पूछा हुआ है आपका एलिमेंट 2, उसको डिफाइन कर दिया है रिलेशन R के टर्म्स में। इसका मीनिंग है जो ये आपके एलिमेंट्स गिवन है ऑप्शंस में, वो हमें चेक करने हैं वो आपके इक्विवेलेंस क्लास से बिलोंग करेंगे कि नहीं। तो चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन रख के देखते हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन में 2 5 8 वैल्यूज दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन पहले चेक करते हैं। जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी यहाँ पर वैल्यू 2, तो 2 माइनस 2 0। ठीक है, 0 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सेकंड चेक करूंगी 5 मींस 5 माइनस 2। अच्छा, ये मैंने ऐसे रखा, मोड में तो वैल्यू आपकी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आगे पीछे से इसमें चेंज नहीं आएगा। 2 माइनस 5 इट मीन्स 3। 3 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन 8 के लिए चेक करेंगे, 8 के लिए आ जाएगा 2 माइनस 8 मीन्स 6। 6 भी डिविजिबल हो रहा है आपका 3 से, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो यहीं से क्लियर है कि आपका ऑप्शन ये क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 हियर अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन R। इस तरीके से आप चेक करेंगे इक्विवेलेंस क्लास के लिए। अब सेकंड ऑप्शन रख के देखो। सेकंड ऑप्शन अगर मैं एक बार आपको चेक करा देती हूँ, नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा नहीं।
बी के लिए अगर मैं चेक करती हूँ, अगर बी ऑप्शन के लिए, तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 0 है, 2 माइनस 0 2 इज डिविजिबल बाय 3 नोट। तो यहीं पे आपको कंफर्म हो गया होगा कि बी ऑप्शन इज योर रॉन्ग। देन सी का भी एक बार चेक करा देते हैं। सी में फर्स्ट एलिमेंट क्या गिवन है, 3 3 6 9 गिवन है ना आपका। तो अगर मैं इस रिलेशन आर में रखती हूँ फॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, तो 2 माइनस 3 क्या आएगा, 1 1 इज डिविजिबल बाय 3, ये रेशनल वैल्यू हो गया। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज योर ट्रू फॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। इस तरीके से आपको रिलेशन में वैल्यू पुट करके और उसके सबसेट की वैल्यू निकाल लेनी है। मीन्स आपका इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगा पर्टिकुलर एलिमेंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर। नेक्स्ट मैं आपको ये 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 आपके प्रैक्टिस के लिए। इनको सॉल्व करके देखेगा यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ योर रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। If you have any query then further, then ask in the comment box. Okay, I can reply for it as quick as possible. ठीक है, तो इस तरीके के वीडियोस अब आपको मिलते रहेंगे पार्ट 1 पार्ट वाइज। सो आप रिवीजन करिएगा अपने अच्छे से और इन क्वेश्चंस को सोल्व करके देखिएगा इफ यू हैव एनी बॉक्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।